So now guys, here we will be discussing about Python anonymous and lambda function. Yesterday we discussed about how you can define function in Python programming using parameter, without parameter, with return statement. We discussed about pass statement and special symbol star args. Now in today's session we will be discussing about Python anonymous or a lambda function. This anonymous or lambda function will going to play an important role. In data science projects, you will be using or you will be defining an anonymous function, meaning you are going to use the concept of lambda. Now with this lambda, we need to understand two more concepts, map and filter. So one by one, I will be explaining you all these concepts. Okay. So first of all, let's understand that what do we mean by Python anonymous or lambda function. Sometimes we need to declare a function without any name. The nameless property function is called an anonymous function or lambda function in Python programming. The reason behind using anonymous function is for instant use, that is one-time usage. Normal function we declare using this def keyword. Okay, in yesterday's session we saw that normal function we need to define using this dep function, whereas the anonymous function is declare using the lambda keyword. So this is going to be your syntax when you guys are going to use lambda function. So you are going to use lambda. Okay, here you are going to define an argument list and expression. Okay, so using lambda is easy, but you need to understand one important point, or you can say a rule. When we define function using the lambda keyword, the code is very concise so that there will be more readability in your code. A lambda function can have any number of argument but return only one value आफ्टर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. ओके, सो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको दोबारा पढ़ो. अ लैम्डा फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मीनिंग आप अपने लैम्डा फंक्शन में जितने मर्जी भी आर्ग्यूमेंट पास कर लो. ओके, देयर इज नो सच लिमिटेशन. अ लैम्डा फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बट इट विल रिटर्न ओके ओनली वन वैल्यू आफ्टर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. ओके, सो ये पॉइंट आप हमेशा अपने माइंड में रखना. अ लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन. ओके, सो यू कैन राइट दिस पॉइंट हियर. very important point. A lambda function can have any number of arguments but okay can only have one एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन एक ही होगा बट आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी पास कर सकते हो. ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मतलब क्या होता है पाइथन एनोनिमस और लैम्डा फंक्शन का. ठीक है, और ये जो सिंटेक्स मैंने अभी आपको बताया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिंटेक्स विद द प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, तो लेट अस से यहाँ पर मैं एक लैम्डा फंक्शन बना रहा हूँ. हेयर आई एम डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल एक्स ओके इज इक्वल टू लैम्डा. अब यहाँ पर आपको अपने कोई भी फंक्शन का नाम लिखने की नीड नहीं है. यू जस्ट यूज दिस लैम्डा कीवर्ड. नाउ लैम्डा विल गोइंग टू टेक आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम यू. ओके, ये जो आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट. नाउ हियर with the help of single colon you can specify the expression या जो भी आपको compute करना होगा. लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया x is equal to x plus 10, या लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ a plus 10. ध्यान से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना. ओके, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग दिस x and now you can see that we have defined a lambda function which will going to take an argument. okay, ये सिंटेक्स मैं पहले एक बार लिख देता हूँ. देखो, लैम्डा को यूज़ करने के लिए what you will be doing, you will be using this lambda keyword. यहाँ पर आएंगे आपके आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पर आएगा आपका एक्सप्रेशन.
ठीक है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है गाइस। सपोज आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, या सपोज आप लोगों को चेक करना है नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। ओके, ये एक्सप्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, बट सिंटेक्स आपका यही रहेगा। हेयर यू आर गोइंग टू डिफाइन एन आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट एक्सप्रेशन you need to perform on these arguments you can specify here after this column. Okay, so let us say अब मैंने यहाँ पर एक value pass करी 5. Now let me run this cell. Okay, and now what this line number 4 will do, it will going to return you the output of 15. Okay, cell को एक बार run कर लेते हैं and the output which we are going to receive is 15. ओके, सो यू कैन सी गाइस दैट वी आर गेटिंग दिस आउटपुट। अब मैं आपको इस लैम्डा फंक्शन की वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि लैम्डा फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक अवर कोड कंसाइज। ठीक है, तो देखो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। अब देखो होगा क्या, दिस इज यू कैन कंसिडर एज अ कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ओके, ये आप कंसिडर कर सकते हो दैट हियर यू आर कॉलिंग वन फंक्शन। अब ये जो 5 है, यू आर पासिंग दिस 5 हेयर। ओके, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, दिस 5 वी आर पासिंग हेयर। ठीक है, अब इस 5 में आप क्या एक्सप्रेशन करो, सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a विद 5 प्लस 10। सो ये अब आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, ये आपको रिटर्न करके दे देगा 15। ओके, सो लैम्डा फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके, बट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर आप बहुत सारा कोड नहीं लिख सकते। इन हेयर यू नीड टू स्पेसिफाई ओनली वन एक्सप्रेशन। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज दिस, दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पर आप कर रहे हो फंक्शन को कॉल। अब ये जो 5 है, दिस 5 विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस a। ओके, अब इस 5 पे आप क्या एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहे हो, 5 प्लस 10। ठीक है, तो 5 प्लस 10 क्या होता है गाइस, 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी आर नॉट यूजिंग एनी रिटर्न स्टेटमेंट, वी आर नॉट डिफाइनिंग अ फंक्शन विद डेफ कीवर्ड, वी आर जस्ट यूजिंग दिस x, और यहाँ पर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि अ लैम्डा फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। सो मीनिंग लैम्डा में आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट पास कर लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। चलो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, x इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, यहाँ पर नाउ आई एम गोइंग टू पास 3 आर्ग्यूमेंट। ओके, अब इन 3 आर्ग्यूमेंट में मेरे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से a प्लस b प्लस c, दिस इज माई एक्सप्रेशन और दिस इज माई ऑपरेशन। सो यहाँ पर आपने अपने फंक्शन को कर दिया डिफाइन। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस x। नाउ हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स वी नीड टू पास गाइस, वी नीड टू पास 3 आर्ग्यूमेंट। सो लेट अस से मैंने पास कर दिया 10, 20 एंड 30। सो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस, इनका सम आप लोगों को प्रिंट होके आ जाएगा। सो सेम गाइस, दिस 10 वी आर पासिंग इन a, दिस 20 we are passing in the b, this 30 you are passing in the c. So 10 plus 20 plus 30, it is what, it's a 60. So what I mean to say is a lambda function can have any number of argument, 1 दे दो, 3 दे दो, 10 दे दो, 1000 दे दो, there is no such restriction. But ये जो आपका expression रहेगा, expression means जो आपको operation perform करना है इन arguments पे, this will remain only 1. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कॉमा दे के चलो मेरे को एक और एक्सप्रेशन परफॉर्म कराना है a मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ आई ट्राई टू डू दिस हियर, पाइथन विल गोइंग टू गिव मी दिस एरर। अंडरस्टूड, बिकॉज अ लैम्डा फंक्शन कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले आप ये 2 बेसिक सेल एग्जीक्यूट करो, ओके, एंड देन आई विल शो यू दैट व्हाई वी शुड लर्न दिस लैम्डा फंक्शन, मीनिंग हाउ दिस लैम्डा फंक्शन कैन मेक योर कोड concise. Okay, execute this. So now I will show you one another way of using this lambda function. मैंने अभी आपको ना theoretical introduction में बताया था कि we use this lambda function so that we can make our code concise. Okay, and we can मेक आवर कोड मोर रीडेबल। ठीक है, अभी तो आप लोग पहली बार लैम्डा फंक्शन को समझ रहे हो, दैट इज़ द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक दिस। बट आप लैम्डा फंक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हो।
देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने आप लोगों को बताया कि इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैम्डा एंड एनोनिमस फंक्शन आर फंक्शन विदाउट नेम। बट यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हम तो यहाँ पे नाम दे रहे हैं और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। इधर भी मैंने यही काम किया, एक्स और यहाँ पे 10, 20, 30 पास कर दिया, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, हम ये तो यहाँ पे नाम दे रहे हैं, तो इसमें एनोनिमस एग्जैक्टली में क्या हुआ और यहाँ पर ये जो नेमलेस है इसका एग्जैक्टली में मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो गाइस देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग में लैम्डा फंक्शन को यूज़ करने का एक और तरीका है। मैंने यहाँ पे यूज़ किए ब्रैकेट्स लैम्डा। सिंटेक्स याद है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो कितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे दो, लेट्स से ए कॉमा बी कॉमा सी, इस आर्ग्यूमेंट्स पे मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। और यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड नाउ हियर यू कैन पास 3 आर्ग्यूमेंट, लेट्स से 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि येस इट्स अ फंक्शन विदाउट अ नेम, okay, and this lambda function can receive any number of argument but can have only one expression। अब देखो क्या होगा कि आपको ऐसा लिखने की नीड नहीं है, 2 will be replaced by a, 3 will be replaced by b, 4 will be replaced by c, and when you are going to run it, ये lambda function आपके लिए ये computation execute करके दे देगा। okay, so lambda function is an anonymous function without any name, okay, but in most of the cases you will be going to write syntax like this, ठीक है। अब चलो मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस लैम्डा फंक्शन की नीड क्या है, ओके। क्योंकि ये a+10 तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ, ये a+b+c हम एक नॉर्मल फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो व्हाई वी आर लर्निंग दिस लैम्डा? So guys, when you are going to work on projects now, as a developer you will be focusing more on code readability, ठीक है। आप लोग नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बट देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन विद इन 1 लाइन ऑफ कोड, ओके, तब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लैम्डा फंक्शन को, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको डेटा साइंस के एक प्रोजेक्ट में लैम्डा फंक्शन का डेमो भी दिखाऊंगा, ओके। एक सिचुएशन हम लोग एनकाउंटर करेंगे जहाँ पर आपको 3000 नंबर ऑफ डेटा दिया जाएगा और उस डेटा पे आपको एक एक्शन परफॉर्म करना रहेगा। सो वी विल बी यूजिंग लैम्डा फंक्शन। चलो अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एंड द नॉर्मल फंक्शन, किस तरीके से लैम्डा फंक्शन कोड रीडेबिलिटी आपके कोड को कंसाइज करता है, ठीक है। तो गाइस देखो, एक सिंपल सा हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, एंड दिस फंक्शन विल प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। एक लिस्ट यहाँ पर बनाएंगे और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करके देगा, आपको सारे इवन नंबर्स प्रिंट करके दे देगा, ओके। सो लेट मी डिफाइन दिस फंक्शन इवन नंबर्स, ओके। दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिसीव सम आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम यू, ओके। और यहाँ पर एक मैं एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, लेट्स से इवन लिस्ट, this is my empty list, okay, and यहाँ पे I'm going to use for loop for n in numbers, okay, if n mod 2 is equal to 0, okay, so ये जो मैंने एक empty list बनाई है even list, इसमें हम उस नंबर को करा देंगे append, ठीक है। और here this function will going to return me that even list, ठीक है। तो गाइस ये फंक्शन एग्जैक्टली में क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपसे एक लिस्ट रिसीव करेगा, ओके, और उस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर्स होंगे सिर्फ आपको वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो चलो वो लिस्ट बना भी लेते हैं, नम लिस्ट, ओके। कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे पास करता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, okay. So now I'm going to define one variable result, okay। अब हम कर देते हैं इस फंक्शन को कॉल इवन नंबर्स, और यहाँ पर मैंने पास कर दी ये नम लिस्ट, ठीक है। और फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रिंट माय रिजल्ट, ठीक है। या आप कुछ इस तरीके से भी लिख दो कि माय even list is this,
ठीक है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ अभी इस रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ. सो गाइस व्हाट वी आर डूइंग हियर, ये जो लिस्ट है ये हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं. ओके, नाउ हेयर आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि इस एम्प्टी लिस्ट में सिर्फ वही एलिमेंट ऐड करोगे जो डिविजिबल बाय 2 है. रिमेंबर इन डेटा स्ट्रक्चर वी डिस्कस अबाउट दिस अपेंड फंक्शन. सो अभी हमारी लिस्ट बिल्कुल खाली है, बट जैसे ही आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी इस इवन लिस्ट में यू आर गोइंग टू ऐड ओनली दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, और बाद में आप क्या कर रहे हो, ये ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद इस लिस्ट को आप करा रहे हो रिटर्न. ओके, सो लेट मी रन दिस सेल. ठीक है, अब आप देखो कि हमको क्या मिल गया, जितने भी इवन नंबर्स हैं यहाँ पे वो सारे हमको रिटर्न होके आ गए. सिंपल लॉजिक है कि मैंने आपको बोला कि एक फंक्शन लिखो और वो फंक्शन आपसे एक लिस्ट लेगा और उस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपको प्रिंट करके देनी है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर नॉर्मल फंक्शन. तो गाइस यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ कोड लिखी है हमने, अगर चलो इस स्पेस को हटा दो तो हमने यहाँ पे लिखी 9 लाइन ऑफ कोड. ठीक है, अब देखते हैं कि लैम्डा ये टास्क किस तरीके से आपके लिए सॉल्व करेगा. ओके, सेम टास्क नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लैम्डा. ठीक है, अब देखो गाइस, उसको लैम्डा को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. इन लैम्डा वी हैव दिस फिल्टर फंक्शन. ओके, लैम्डा provides you one more function, okay, and the name of that function is a filter function. ठीक है, अब देखो ये filter function exactly में क्या करेगा, I'll explain you. इसका फिर मैं आपको syntax भी बताता हूँ और मैं फिर आपको इसका usage भी बताता हूँ. ठीक है, so now guys first let's understand about this filter function and then we are going to concise this, meaning इसको थोड़ा और better तरीके से लिखेंगे. So what do we mean by filter function? In Python, the filter function is used to return the filtered value. Meaning ये क्या करेगा, आप लोगों के लिए एक फिल्टर लगा देगा और जो भी वैल्यू आपको रिटर्न होकर आएगी वो उस फिल्टर के थ्रू आएगी. ठीक है, सो वी यूज दिस फंक्शन टू फिल्टर द वैल्यूज बेस्ड ऑन सम कंडीशन. इसका सिंटेक्स क्या है, यू आर गोइंग टू यूज दिस फिल्टर. यहाँ पर आप पास करोगे अपना फंक्शन और इधर आप पास करोगे अपना सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, कुछ भी आप यहाँ पर पास कर सकते हो, सीक्वेंस. ठीक है, अब देखो ये जो सेम फंक्शन है और ये जो सेम प्रोग्राम है, नाउ वी विल बी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर. चलो यहाँ पे एक लिस्ट को ले लेते हैं, इसी लिस्ट को चलो हम ले लेते हैं एंड जस्ट कॉपी. ओके, सो ये लिस्ट है हमारे पास. ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है इवन नंबर्स. ओके, here I am going to use list. Okay, here I am going to use this filter. Okay, and now what I am going to do is I am going to use this lambda. अब मैंने आपको बताया था कि lambda में हम यहाँ पर arguments define करेंगे. Okay, so this x is going to be the argument और इस argument पे I want to perform this operation x mod 2, okay, is equal to 0. Okay, x mod 2 is equal to 0. तो गाइस ये क्या हो गया ये हो गया आपका फंक्शन. देखो ध्यान से देखो, फिल्टर में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना फंक्शन. अब इस फंक्शन को लिखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पास योर सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है गाइस, हमारा नम लिस्ट. ठीक है, और अब क्या करते हैं कि लेट्स प्रिंट दिस इवन नंबर्स. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रिंट और यहाँ पर मैंने लिख दिया इवन नंबर्स एंड नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस सेल. सो गाइस क्या आप लोग देख पा रहे हो कि बाय जस्ट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. ठीक है, अब गाइस नाउ वी आर डेवलपर. अब देखो आपके सामने दो एग्जांपल्स है, या तो आप ये वाला कोड लिख लो, ठीक है, जिसमें आपने लिखी 9 लाइन ऑफ कोड. ठीक है, या तो गाइस आप ये वाला कोड लिख लो जहाँ पर आपने लिखी सिर्फ 2 लाइन का कोड. विच वन इज बेटर, ऑब्वियसली दिस वन. अब ये काम किस तरीके से कर रहा है ये अब आप समझो. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग आप इसकी समझो. सो आई एक्सप्लेन यू द वर्किंग, क्योंकि इन्हीं तरीके से हम लोग लैम्डा को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो गाइस ये मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ. सो आई जस्ट कीप इट 26. ओके नाउ
सो गाइस देखो, सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन को यूज़ किया। मैंने आपको बताया कि लैम्डा कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अ लैम्डा कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो बेसिकली इन दिस एक्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग दिस num अंडरस्कोर लिस्ट। तो बेसिकली गाइस एक्स में आप लोग क्या कर रहे हो, बिहाइंड द सीन इन एक्स यू आर पासिंग दिस इंफॉर्मेशन। ये जो आपकी लिस्ट है, दिस इज व्हाट यू आर पासिंग इन योर एक्स, ठीक है। अब ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे इट विल गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्शन। ओके, हर एलिमेंट पे इट विल गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्शन, एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लैम्डा फंक्शन है ये आपको कुछ वैल्यूज रिटर्न करके दे देगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ व्हाट दिस फिल्टर विल डू, फिल्टर आपको सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन रिटर्न करके देगा जहां पर ये एक्सप्रेशन है ट्रू। ओके, दिस filter function will going to return you only those numbers in a list which satisfy this condition, ठीक है। कि देखो 2, हाँ अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से और अगर आपका रिमाइंडर आता है 0 तो हाँ यहाँ पे देखो कंडीशन होगी ट्रू। सो इस लिस्ट में ओके, इस लिस्ट में ये फिल्टर क्या करेगा, ये आपको ऐड करके दे देगा 2, ठीक है। अब देखो लैम्डा फंक्शन आएगा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे 3, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो क्या ये 0 देगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिल्टर इसको कर देगा इग्नोर। फिर आएगा 4 पे, हाँ 4 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर इस लिस्ट में ऐड कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि बाय जस्ट राइटिंग 1 लाइन ऑफ कोड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये फिल्टर क्या करेगा, ये हो गया मेरा फंक्शन, ठीक है, कि जितने भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं उन पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो और इस फिल्टर को क्या चाहिए होती है, एक सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस हमारा क्या है, वो सीक्वेंस है ये। सो नाउ व्हाट दिस फिल्टर विल डू, इट विल इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन ऑन एवरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मीनिंग 2, 3, 4, 5, और सिर्फ वही वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा जहां पर आपकी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। Okay, so guys, which one is better? I hope this one is much better, ठीक है। तो this is how lambda function provides you a code readability। और guys अगर आप lambda यूज नहीं कर रहे हैं, so what we need to do is, तो guys हमको ये लॉजिक इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। So as a developer guys, I am going to prefer this approach। Okay, so now I am forwarding you these comments in the chat section। आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो और टेस्ट करो। ओके, एंड नाउ गाइस प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एनीवन फेसिंग एनी कंफ्यूजन। नाउ आई विल बी शोइंग यू वन रियल टाइम एग्जांपल। सपोज गाइस यू आर डीलिंग विद द यूनिवर्सिटी डेटा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ओके, मैंने आपको बोला कि मेरे को सिर्फ वो वाले मार्क्स रिटर्न करके दो वेयर स्टूडेंट्स आर सिक्योरिंग मोर देन 70 मार्क्स, ठीक है। एक चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेटर से हमारे पास एक मार्क्स है। ओके, यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखता हूँ, 45, 78, 87, 90, 32, 65। ओके, कुछ भी रैंडम मैं यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ, लेट्स से अराउंड 65 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास मार्क्स है। मैंने आपको बोला कि नाउ राइट अ पाइथन फंक्शन फॉर मी and that Python function should print those marks which is above 70, ठीक है। अब देखो या तो आप लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, देर आर मल्टीपल कोड्स वी कैन राइट फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप लोग फॉर लूप यूज़ कर लो, आप लोग फंक्शन यूज़ कर लो, वो फंक्शन आपको रिटर्न करके दे देगा कि ये मार्क्स हैं जो आपके 70 से अबव है। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट। ओके, एंड दिस फिल्टर कैसे, देखो रिजल्ट, मैंने फिर से यहाँ पर एक लिस्ट ली, इनबिल्ट फंक्शन, आई एम गोइंग टू यूज दिस फिल्टर, ठीक है। अब इस फिल्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका फंक्शन। तो चलो फंक्शन लिख देते हैं, लैम्डा एक्स, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिख दो कि x जो है शुड बी, ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 70, ये आपका बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 70 के, ठीक है।
और ये हो गया हमारा फंक्शन, और इसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर जो भी आपका सीक्वेंस है। तो बिहाइंड द सीन व्हाट पाइथन विल डू, ओके, इन दिस एक्स वी आर गोइंग टू पास दीज मार्क्स। हर वैल्यू को इवेल्यूएट करेगा कि क्या 45 आपका 70 से बड़ा है, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा, अगर हाँ तो फिल्टर उसे उस नई लिस्ट में ऐड कर देगा। ओके, सो द मोमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस रिजल्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि वी आर गोइंग टू गेट दोज मार्क्स विच इज अबव 70। क्या हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं? नहीं। आर वी यूजिंग एनी फंक्शन है कि डेफ फंक्शन और उस फंक्शन में पास कर रहे हो पैरामीटर और उस फंक्शन से रिटर्न करा रहे हो लिस्ट? नो, बाय जस्ट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो ये जो लैम्डा फंक्शंस है ना, आपकी पाइथन जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर यूजिंग डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगे गाइस जिसमें हम इस लैम्डा को यूज़ करके अपने कोड को कंसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये वैल्यूज़ एक नॉर्मल फंक्शन से नहीं रिट्रीव कर सकते या फॉर लूप से नहीं कर सकते, वी कैन, ओके, बट हियर गाइज यू कैन सी वी जस्ट नीड टू राइट वन लाइन ऑफ code, okay, which makes your code more concise and more readable. Okay. Please execute this, then I will be explaining you map. So now guys, here I'm going to give you a task. Do one thing here, filter on strings of length 5 from a list of strings। ठीक है, यह गाइस सिंपल है, मैं आप लोगों को एक नेम्स की लिस्ट दूंगा, ओके, और आपको एग्जैक्टली में क्या करना है, सिर्फ वो वाले नेम्स प्रिंट करने हैं जिनकी लेंथ 5 से बड़ी है। ठीक है, या मैं आपको कुछ स्ट्रिंग्स दूंगा एंड यू नीड टू प्रिंट ओनली दोज स्ट्रिंग्स वेयर लेंथ इज ग्रेटर देन 5। ये टास्क गाइस आपको परफॉर्म करना है यूजिंग लैम्डा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग लिस्ट, ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूँ। लेट्स से वी हैव हेलो, देन गाइस वी हैव दिस पाइथन, ओके, देन हियर आई एम गोइंग टू राइट दिस food, eat, sleep, okay, and let's say one machine, that's it, okay. So now guys do one thing, you need to write a lambda function, okay, और आप लोगों को सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग्स रिटर्न करके देने हैं जिनकी लेंथ 5 है या 5 से बड़ी है। प्लीज ट्राई, ओके, दिस प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस फिल्टर एंड लैम्डा। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या रिटर्न करके देना आपको, इस हेलो की लेंथ देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 या, सो हेलो यू विल गोइंग टू प्रिंट। पाइथन 5 है या 5 से बड़ा है, यस। फूड नहीं, ईट नहीं, स्लीप यस, देन मशीन। So this output I am looking from you. Please try. So now guys you can see that by just writing one line of code you can filter it out. Okay. So ये हमारी string है, ठीक है, इस string में आपने ये code लिखा, length of a if it is okay 5, then you are going to print this string result. Okay, simple logic है कि देखो अगर आपकी string की length 5 या 5 के बराबर है, देन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग दिस लैम्डा एंड फिल्टर, बाय जस्ट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो नाउ गाइज हियर आफ्टर दिस फिल्टर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन अनदर कॉन्सेप्ट, मैप। ठीक है, in Python programming the map function is used to apply some functionality for every element present in the given sequence and it generate a new series with a required modification। फिल्टर आपका क्या करता है, फिल्टर करता है, ओके, मतलब ये आपको वही वैल्यू रिटर्न करके देगा जहां पर आपकी कंडीशन होती है सेटिस्फाई। मैप क्या करेगा,
map will going to apply some functionality on each and every individual element present in your sequence. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. फिल्टर करेगा, मैप क्या करेगा, एक फंक्शनैलिटी होगी जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा ऑन एवरी एलिमेंट. सो मैप फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई some functionality for every element present in the given sequence and it will generate a new series with the required modification. ठीक है, तो how you can use this map, I'll just explain it to you, क्योंकि map भी हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे. ओके, सो फिल्टर हम लोगों ने देख लिया how filter works. Now let's understand that how this map works. Alright, so guys, let's say here मेरे पास एक list है, okay, and in this list I'm passing some elements 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, and now what I need to do is I need to print their cube values. ठीक है, मैंने आप लोगों को लिस्ट दी, आप लोगों को क्या करना है, एक लॉजिक लिखना है और वो लॉजिक क्या करेगा कि इनका क्यूब प्रिंट करेगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब. ठीक है, अब देखो गाइस कैसे हम इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. वही दो तरीके हैं, या तो फॉर लूप का यूज़ कर लो या आप उस फंक्शन के अंदर उस फॉर लूप को डिफाइन कर लो और उस फंक्शन से आप ये वैल्यू रिटर्न करा लो. ठीक है, मतलब हमें लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी, बट वी नो दिस लैम्डा फंक्शन, सो हाउ वी कैन यूज इट. इट्स सिंपल, रिजल्ट, एक लिस्ट बना लेते हैं. नाउ गाइस वी आर गोइंग टू यूज दिस मैप. ओके, यहाँ पर अब आप अपना लिख दो लैम्डा फंक्शन एक्स, और हर एक x पे मेरे को क्या परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पर आप पास कर दो अपनी लिस्ट 1. ठीक है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट योर रिजल्ट, ओके, नाउ व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, ये देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये प्रिंट होकर आ गया. तो देखो मैप क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया कि मैप इज यूज टू अप्लाई सम फंक्शनैलिटी ऑन एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सीक्वेंस. सो अब इस लिस्ट 1 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हर एलिमेंट पे दिस लैम्डा विल गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट. यहाँ पर हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं, हेयर वी आर अप्लाइंग दिस फंक्शनैलिटी ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट. Okay, so this is what your lambda function is all about. Okay, so guys, in Python programming you can use lambda to make your code concise. और lambda में आपको दो कॉन्सेप्ट और समझने होते हैं, फिल्टर एंड मैप. फिल्टर करने के लिए मैप, टू अप्लाई सम फंक्शनैलिटी फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सीक्वेंस. ओके, प्लीज ट्राई. So guys, here it completes our functions in Python programming. So in Python programming, not only you are going to use inbuilt function, sometimes you need to define your own functions. Okay, and you can define that function by using def keyword. Now you can create function without parameter, with parameter, okay, with a return statement, okay, and you can use pass statement, you can use the special symbols, or even you can use this lambda function. Okay, lambda function को anonymous function भी बोलते हैं. Now guys, after this function we are going to understand another very important topic of Python programming, which is your object oriented programming. Oops. Okay, this concept guys is going to play very important role. Okay, oops in Python. Okay, सो गाइस, ये जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप लोग कोई सिंपल वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हो, सो बिहाइंड द सीन यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास. ठीक है, देखो अगर मैं एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल भी यहाँ पर बना रहा हूँ ना, x इज इक्वल टू 10, लेट मी चेक द टाइप ऑफ दिस x. ध्यान से देखना कि हमको क्या रिटर्न होकर आएगा. यहाँ पर एक int प्रिंट होकर आएगा, बट उस int से पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लास कीवर्ड. So meaning even a simple variable of your Python programming related to the class. ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये इंटीजर क्लास क्यों है, क्योंकि आपको ये क्लास कुछ मेथड्स प्रोवाइड कराएगी जो आप लोग यूज़ कर सकते हो. ठीक है, देखो जैसे मैं लिखूँगा x डॉट, तो यहाँ पर ये देखो these are some inbuilt methods properties which you can use. Okay,
So guys, this object oriented concept is going to play an important role मशीन लर्निंग में. ओके, मशीन लर्निंग में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स से स्किल लर्न लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, ध्यान से देखो गाइस, बहुत जल्द हम इस मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं, स्किल लर्न लीनियर रिग्रेशन. और एक्चुअली में ये है क्या पाइथन प्रोग्रामिंग में, कैन यू सी दिस कीवर्ड क्लास. ठीक है, अब आप इस मॉड्यूल को यूज़ करके कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं जो आपको मिलेंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हो. बट द थिंग इज, बिफोर you use this class you need to create an object of it, and then only you will be able to use these inbuilt methods. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं. ओके, they think that okay, object oriented programming plays an important role in C++ and in Java. No guys, even in Python programming this oops concept plays an important role. आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हैं. ओके, so after functions the next thing which we are going to understand is object oriented programming in Python. So after functions, now we are going to understand the most important topic of Python programming, object-oriented programming. So what do we mean by OOP? OOP stands for object-oriented programming. In a very layman term, object-oriented programming is a programming paradigm based on the concept of objects. Meaning, the moment when you start using the concept of objects, that means you are using ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अभी तक का इस जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा, while object oriented programming is about creating object that contain both data and methods. So अभी तक functions तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? Procedural programming. Now we are going to learn object oriented programming. So object oriented programming has several advantages over procedural programming. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गाइस मैं आपको बता देता हूँ, they think that the concept of classes and objects are useless. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप लोग यूनिवर्सिटी में हो, अभी आप लोगों ने कोई रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं बनाई है. जब आप कोई MNC ज्वाइन करोगे या जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल. यू कैनॉट रन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दी सिंपल थिंग इज दिस. ठीक है, मेरे को भी यही लगता था कि दिस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, बट नहीं. व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग दी applications in real time, then we realizes the importance of object oriented programming. अभी एक importance मैं आपको इस डेमो में भी समझाऊंगा. तो देखो, object oriented programming got several advantages. Advantage number 1, OOP is faster and easier to execute. Object oriented programming provides a clear structure for the programs. Object oriented programming help Java or Python coders to use this principle of DRY, which means don't repeat yourself. Okay, ये functions में हमने पढ़ा था don't repeat yourself. Same logic हमारे पास object oriented programming में भी है, which will make your code easier to maintain, modify and debug. Object oriented programming makes it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. These are what? These are the benefit advantages of using your object oriented programming. Now in object oriented programming guys, we need to understand two things, class and object. ठीक है, मैं आपको एक फनी पार्ट बताऊं कि जब भी बच्चों से पूछा जाता है ना कि व्हाट इज क्लास या व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, और रटी रटाई डेफिनेशन बोलते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ठीक है, आपने ही आप लोग वाइवास को रिकॉल कर लो, जब आपसे वाइवा में किसी ने पूछा होगा व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन आपने अपने
वाइवा वाले को चिपका दी होगी कि सारा क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, ठीक है। बट अगर वो आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहे ना तो वो बहुत इजीली कंफ्यूज कर सकता है कि अच्छा ब्लूप्रिंट का क्या मतलब हुआ और इंस्टेंस का क्या मतलब है, कि क्यों ज़रूरत है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, क्योंकि बिना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के भी हम लोग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्लास क्या है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द कॉमन methods to all object. In Python, a class is created by using this keyword class. ठीक है, in Python, if you want to create a class, you can use this keyword class. We can think of the class as a sketch, prototype of a house. It contains all the details about the floors, doors, windows, etc. Based on these descriptions, we build the house. Since many houses can be made from the same description, so we can create many objects from a class. So meaning in object oriented programming you can create as many objects for a single class, ठीक है। क्लास को इसीलिए ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप कहा जाता है क्योंकि क्लास में आप लोग कॉमन प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे। देखो हर घर में फ्लोर होने चाहिए, डोर्स होंगी, विंडोज़ होंगी, तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ये हम एक क्लास में डिफाइन कर लेंगे। अब जब भी आपको घर बनाना रहेगा यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विल गोइंग टू हैव द फ्लोर, डोर्स एंड विंडोज। ये लॉजिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो दैट इज द रीजन वी से क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और स्केच या प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट। देन व्हाट डू वी मीन बाय एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है, बट इस इंस्टेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, suppose house is a class, then we can create objects like house1, house2 etc. from the class, ठीक है। तो मतलब आपको कोड को बार बार लिखने की नीड नहीं है। सपोज आप एक सोसाइटी बना रहे हो, उस सोसाइटी में हर घर की लुक एक जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। जब आप बाहर जाओगे ना आप लोग नोटिस करोगे कि वहाँ पे जो घरों का स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा ही होता है। और बाहर की बात नहीं करते, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं, जब आप किसी सोसाइटी में घर लोगे हर सोसाइटी का एक ही स्ट्रक्चर होगा, एक ही कलर होगा। अगर उसके पास भी एक फ्लोर है तो आपके पास भी एक फ्लोर होगा, ठीक है। वो सेम डिज़ाइन हम कहते हैं। तो लेट अस से अब उसको अगर हम प्रोग्राम के थ्रू समझें तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट को। हम एक बार क्लास बना लेंगे, उसके अंदर मेंशन कर देंगे कि इतने फ्लोर होंगे, ये कलर रहेगा, इतनी डोर्स रहेंगी, इतनी विंडोज़ रहेंगी, ठीक है। क्लास में इन सारी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने का क्या फ़ायदा है कि नाउ यू डोंट नीड टू राइट दिस कोड अगेन एंड अगेन, यू जस्ट सिंपली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, house1, house2, house3 etc. and quickly and immediately you can build up a house, ठीक है। so that is the reason we say try, don't repeat yourself, ठीक है। अब इस क्लास और ऑब्जेक्ट को मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये सेल्फ कीवर्ड और ये इनिट थोड़ा बाद में समझेंगे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास and how we can define an object of a class. So now guys, here I'm going to add a new cell, okay, और मैं आपको बताता हूँ कि that how you can create a class. So guys, in order to create a class in Python programming आपको एक एक कीवर्ड देगा class, and here you can write the name of your class, ठीक है। क्लास को कुछ भी नेम आप दे सकते हो गाइज, कीपिंग वेरिएबल रूल्स इन योर माइंड। न्यूमेरिक मत देना, स्पेस मत देना, की सेंसिटिविटी का ध्यान रखना, ठीक है। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज गाइस, इन दिस क्लास यू कैन डिफाइन वेरिएबल्स एंड मेथड्स। बेसिकली इन अ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी कॉल क्लास एज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ओके। डेवलपर से अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज क्लास, दे विल टेल यू दैट अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स विच विल बी कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास में गाइज आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक यू कैन राइट दी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग फॉर योर फंक्शन, आप अपनी क्लास के लिए भी एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैं आपका जूनियर डेवलपर हूँ और आप लोग सीनियर डेवलपर हो, आप लोगों ने मेरे लिए एक क्लास बनाई है, बट हाउ आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट क्लास विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। या आपके बॉस को अगर चेक करना है कि ये क्लास एग्जैक्टली में कर क्या रही है, सो यू कैन राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट क्लास यूजिंग दीज ट्रिपल कोट्स, ठीक है। 3 डबल कोट्स लिख लो या 3 सिंगल कोट्स लिख लो, बोथ आर वैलिड। सो लेट अस से मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, माई फर्स्ट क्लास
इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आप लोग कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि दिस क्लास विल डू दिस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग दिस क्लास इज दैट। सो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में गाइस आप कुछ भी लिख लो। Now guys, in a class you can define some variables. Let's say a is equal to 10. Okay, मैंने यहाँ पे लिखा b is equal to python and so on. Okay, similarly in a class you can define functions. So let us say this is my function 1. I am going to use this print function. I am the method of class. Okay, now guys, I'm defining another function because I just told you that in a class you can define variables and methods. A class is a collection of variables and method, और यहाँ पर जितने मर्जी variables define कर लो, जितने मर्जी functions आप लोग define कर लो. Okay, let us say here I'm going to write I am the another method of a class. Alright, so guys, this is how you can create a class in Python programming. ये होगी documentation string. देखो class के अंदर मैंने variables define कर दिए और class के अंदर मैंने functions भी define कर दिए. Okay. Now these variables we call it as a member variable and these methods we call it as a member methods, meaning which belongs to class. Now guys, I am going to run the cell और यहाँ पर हमने बना ली है अपनी पहली class. ठीक है. अब देखो गाइस, अगर किसी को आपके क्लास के डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो वो क्या करेगा, सेम प्रिंट, क्या नाम है आपकी क्लास का, माई क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ठीक है, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस, ये आपकी क्लास की जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगी, माई फर्स्ट क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग, वो प्रिंट होकर आ जाएगी. रिमेंबर गाइस, ऑन डे 1 जब हम पहली बार मिले थे, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस हेल्प फंक्शन. अब देखो, अगर मैं जूनियर डेवलपर हूँ और मेरे को इस क्लास के बारे में डिटेल में जानना है कि क्लास एग्जैक्टली में है क्या, सो आई कैन यूज़ दिस हेल्प फंक्शन एज वेल. और यहाँ पर अगर मैं आपकी क्लास के नेम को पास कर दूँ, देखो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑफ योर क्लास विल बी शोन टू मी. देखो, तो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, सबसे पहले दिखा रहा है कि इस क्लास का डिस्क्रिप्शन, माई फर्स्ट क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग. फिर ये जो इनबिल्ट फंक्शन है हेल्प, ये क्या बताएगा कि देखो इस क्लासेस के अंदर डेवलपर ने ये फंक्शंस डिफाइन करें, फंक्शन 1 और फंक्शन 2. थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये भी बता देगा कि इस क्लास के अंदर कितने आपके वेरिएबल्स डिफाइन हैं. ठीक है, सो इफ अ डेवलपर यूजेस दिस हेल्प कीवर्ड और अगर वो यहाँ पर पास कर देता है आपकी क्लास का नेम, सो यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाएगी कि ये मेथड्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन है और ये वेरिएबल्स हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन है. ठीक है, सो गाइस, इन पाइथन प्रोग्रामिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस क्लास कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास. ठीक है, आप लोग पहले ये 3 सेल्स एग्जीक्यूट करो एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अंडरस्टूड? सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ क्लास इन पाइथन गाइस, यूज दिस क्लास keyword. Now guys, I will be discussing about some important points with you. So this is how you can get the documentation string और आप यहाँ पर help inbuilt function को भी use कर सकते हो to get more information about your class. ठीक है, अब देखो कुछ important points हैं guys जो आप लोगों को समझने हैं. जो क्लास के अंदर आपने variables या methods define की हैं. Okay, so class variables and methods can be accessed by using class itself or by creating an object of a class. ठीक है, तो guys, a class variables and methods can be accessed by using class itself or by creating an object of a क्लास. ठीक है, ये मेरी क्लास है. अब देखो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया और मैंने बी को प्रिंट करने की कोशिश करी. ओके, एंड व्हेन आई ट्राई टू रन इट, कैन यू सी दैट वी आर गेटिंग द नेम एरर. इट इज सेइंग दैट दिस नेम बी इज नॉट डिफाइंड. ओके, हाँ, फॉर योर सिंप्लिसिटी लेट मी जस्ट डू वन थिंग. इस कोड को एक बार गाइस मैं दोबारा से कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ. ओके, और अब आप यहाँ समझो कि देखो, जब मैं यहाँ पर इस ए को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू गेट द नेम एरर.
okay, that this a is not defined, but हमने तो a define किया हुआ है. But guys, the thing is this variable now belongs to a class. तो अब आप लोग इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली. So remember this point, that class variables and methods can be accessed by using the class itself or by creating an object of a class. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते. या तो आप क्लास के थ्रू एक्सेस कर लो, या बेटर रहेगा कि आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो. सो मीनिंग इफ यू राइट लाइक दिस, प्रिंट, क्या नाम है गाइस हमारी क्लास का, माई क्लास डॉट ए. नाउ देयर विल बी नो एरर एंड इट विल प्रिंट यू 10. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग द क्लास इटसेल्फ. व्हेन यू कॉपी पेस्ट my class dot b, so now guys it won't give you error, it will print Python for you because we are using the class keyword. Okay, similarly guys, you can use this as well, my class dot function 1. okay, my class, क्या नाम है हमारे दूसरे फंक्शन का, function 2. so I can write like this, function 2, and it will work. okay, कोई एरर नहीं आएगा आपको यहाँ पर. I am the method of the class, I am the another method of a class. okay, but the thing is, as a developer you and me are not going to use this approach anywhere. कहीं पर भी हम इस अप्रोच को यूज नहीं करेंगे. 99.99% of the time we are going to create the object of a class, and once the object is being created, then we will be accessing these variables and these methods. ये just आपके reference के लिए है. yes, you can access the class variables by using the class name itself, but you are not going to use it anywhere. Most of the time you will be creating an object of a class and then you will be using these variables and these methods. okay, पहले आप इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग. So now guys, I am going to again copy and paste the same class. okay, here I will be explaining you how you can create an object of a class. okay, here I'll explain you creating object of a class. So guys, Python programming में जब आप class का object बनाओगे ना, you need to follow very simple syntax. First you can define your class, and what you can do is here you can give the name to your object obj1, and here is equal to, okay, assignment, and here you just need to write your class name. okay, so this is what guys, this is what do we mean by creating an object. देखो simple सा code है यहाँ पर कि you just need to give a name to your object, okay, assignment operator, and you can use this my class, okay, whatever name of your class. So this is the syntax of creating an object in a class. okay, now I told you that a class can have any number of objects. तो यहाँ पर आप एक और object बना सकते हो, obj2 is equal to my class. okay, so this is what guys, this is another object of a class. okay, so Python programming guys, whenever you want to create an object, you just need to follow this simple syntax. जो भी आपकी class का name है, here write that class name, okay, and here you can write your object name. So obj1 is equal to my class means this is our first object, obj2 my class means this is our second object. okay, so this is how we can create an object in a class. अब इस object का benefit क्या है guys? So guys, now with the help of this object, let's say print obj1, now I can access the class variables. okay, ये होता है guys आपका member access operator dot. So that means with the help of obj1 you are calling this variable a. ठीक है, similarly if I just use comma obj1 dot b. okay, now let me copy. Now guys, with the help of even obj2 you can call this variable, and with the help of obj2 you can call this b as well. So when you run it, there will be no error. 10 Python and 10 Python will be printed out. अभी guys मैंने आपको starting में बताया था कि that in a class we create sketch or prototype.
Okay, and this sketch and this prototype will remain same to your object, meaning class will going to share the same information among your object. Okay, so that is the reason we use this class and keyword. इसीलिए कहते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये है यहाँ से गाइस कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि देखो बहुत इजीली मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस करवा पा रहा हूँ. ओके, सो जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या हम फंक्शंस को भी एक्सेस कर पाएंगे, देखते हैं. चलो, मैंने गाइस क्या किया कि ऑब्जेक्ट 1 की मदद से ये वाला फंक्शन कॉल किया, फंक्शन 1. अब देखो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में. लेट मी रन दिस सेल, और यहाँ पर गाइस हम लोगों को आएगा एक एरर. देखो मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ. देखो मेरे ऑब्जेक्ट 1 का नाम भी ऑब्जेक्ट 1 है. ओके, हाँ, फंक्शन 1 का भी फंक्शन 1 है, तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे. और ये जो एरर आएगा ना गाइस, ये आपको थोड़ा और कंफ्यूज करेगा. देखो एरर को ध्यान से पढ़ो. ये कह रहा है कि जो आपका फंक्शन 1 है, इट टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन. इसका मतलब ये है कि ये जो आपका फंक्शन है, ये आपसे कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, बट हम इसके अंदर एक पास कर रहे हैं. बट नहीं, मैं तो कुछ भी पास नहीं कर रहा. एम आई पासिंग एनी पैरामीटर ओवर हियर? नो. सो व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर? ओके, देखो पढ़ो एरर ध्यान से. क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन 1 विल टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. हाँ, ये एक अनपैरामीटराइज फंक्शन है और मैं इसको कॉल भी ऐसे कर रहा हूँ, बट ये कह रहे हैं कि एक हमने दिया है, बट हमने तो कुछ भी नहीं दिया. ओके, so that means with the help of object you can access the variables very easily. जब आप वेरिएबल एक्सेस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रॉब्लम कब आएगी पाइथन में? जब आप इस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करोगे ऑब्जेक्ट की मदद से. ठीक है, पहले गाइस आप इतना कोड लिखो, ट्राई करो. ओके, पहले सिंपल चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस द वेरिएबल्स. और फिर क्या करना, आप इस कोड को लिख के एक बार रन करना. ठीक है, और सेम एरर मिलेगा आप सभी को. हो सकता है कि मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ी कर रहे हो, आपको भी सेम एरर आएगा. ट्राई करो. So now guys, here I would like to give you an introduction of an important concept in object oriented programming, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेल्फ कीवर्ड. ठीक है, आप लोगों ने ये देख लिया कि जब हम ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे, सो वी आर गेटिंग एन एरर. सो हाउ वी कैन ओवरकम दिस एरर? तो गाइस यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोगों को यूज करना पड़ता है ये सेल्फ कीवर्ड. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ कीवर्ड? ये ऑफिशियल डेफिनेशन है आपके सेल्फ कीवर्ड की. द सेल्फ कीवर्ड इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ओके, एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास. ओके, ध्यान से पढ़ो, ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. दैट अ सेल्फ पैरामीटर इज व्हाट? इट इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस मीन्स गाइस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. ओके, so the self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variables that belongs to the class. The first parameter of each method in a class must be the self. ये पाइथन का रूल है कि जो आपके क्लासेस के अंदर आप मेथड्स डिफाइन करोगे ना, जो पहला पैरामीटर है वो सेल्फ होना चाहिए. ठीक है, which refers to the calling object. However, you can give any name to the first parameter. It is not necessary to give the self name. But एक ये रूल है कि जो भी क्लासेस के अंदर आप मेथड्स डिफाइन करोगे, यहाँ पर आपका पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए? सेल्फ होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेल्फ होना चाहिए. ठीक है, अब देखो गाइस क्या होगा अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिखूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेल में लिख दें जहाँ पर हमको एरर आ रहा था. तो यहाँ पर गाइस पाइथन कहता है कि जो भी क्लासेस के अंदर आप मेथड्स बनाओगे उसका पहला पैरामीटर सेल्फ होना चाहिए. ठीक है, अब देखो सेल्फ को लिखने से क्या अब हमको एरर आएगा? लेट मी रन दिस सेल एंड नाउ गाइस कैन यू सी दैट या वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर. इससे पहले क्या एरर आ रहा था कि 0 आर्ग्यूमेंट है बट एक दिया हुआ है. बट अब देखो गाइस, द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस सेल्फ, द एरर हैज बीन गॉन. ठीक है, देख लो. अब मैं ऑब्जेक्ट
टू की मदद से भी, चलो इस फंक्शन वन को कॉल करता हूँ, देखना गाइस अब कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर यूजिंग दिस सेल्फ कीवर्ड। सिमिलरली गाइस अब आप ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू की मदद से फंक्शन टू को भी कॉल कर सकते हो, कोई भी एरर अब आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, देखो कोई भी एरर हमको नहीं आएगा। ठीक है, बट जैसे ही मैं सेल्फ हटाऊंगा, ये देखो यहाँ से हटा देते हैं, इधर से हटा देते हैं, अब गाइस वही सेम एरर हमको आएगा। ओके, वही सेम एरर अब आप लोगों को फिर से फेस करना होगा कि 0 आर्ग्यूमेंट 1 वॉज गिवन। ठीक है, अब देखो ये है क्या, ये सेल्फ एग्जैक्टली में कर क्या रहा है, क्योंकि डेफिनेशन सेल्फ की ये कहती है कि इट रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को, ये जो सेल्फ कीवर्ड है गाइस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ रियल टाइम एग्जाम्पल। एक इमेज मेरे को ढूंढनी पड़ेगी टीचर एंड स्टूडेंट की। चलो गाइस इस इमेज का एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टीचर है, ठीक है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। ठीक है, ये जनरल हर क्लासरूम का सिनेरियो होता है, देयर इज़ अ टीचर एंड देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो कि ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को आप लोगों को समझाना है सेल्फ कीवर्ड। ठीक है, अब गाइज सपोज करो कि आप एक टीचर हो। ठीक है, चलो यहाँ पर एक बोर्ड बना लेते हैं कि दिस इज़ योर बोर्ड। ठीक है, और आप एक टीचर हो। ओके, यहाँ पर एक हम टीचर बना लेते हैं फटाफट से। ये एक टीचर है। ओके, वी लेट्स अज्यूम दिस एज अ टीचर। ठीक है गाइस, अब ये टीचर क्या है एग्जैक्टली में, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ओके, दिस इज द टीचर। ओके, एंड दिस टीचर इज टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स भी बना लेते हैं। एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन एक पूछूंगा, आप लोग बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ा रहा है। लेट अस से ओके, ये इसकी क्लासरूम है। ठीक है, सो गाइस लेट अस से वी कॉल दिस गाय एज अ टीचर। ओके, और ये है इस टीचर के स्टूडेंट्स। ओके, अब गाइस एक एग्जाम्पल देखो कि ये जो टीचर है ना, ये स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहा है। ओके, अभी दिस टीचर इज फेसिंग टूवर्ड्स ब्लैक बोर्ड। ओके, अभी इस टीचर का ध्यान कहाँ है, अभी दिस टीचर इज फेसिंग टूवर्ड्स ब्लैक बोर्ड, और इसका बच्चों पे कोई ध्यान अभी नहीं है। ठीक है, लेट अस से गाइस ही इज एक्सप्लेनिंग यू सम मैथमेटिकल फार्मूला। ओके, और या सपोज करो ही इज टीचिंग यू पाइथन। पाइथन इज इजी। ओके, नाउ गाइस व्हाइल टीचिंग, ओके, यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाउट आया। ठीक है, और उस स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर ये जो पाइथन में वेरिएबल्स है हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब गाइस मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस टीचर को कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट ने डाउट पूछा है। आपको समझ में आया, आप एक टीचर हो, अभी आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की तरफ है। ठीक है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स को फेस नहीं किया हुआ, आप कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते किसी स्टूडेंट ने पीछे से आपसे एक डाउट पूछा कि सर पाइथन में आप हमें ये पढ़ाओगे क्या, वेरिएबल्स और मेथड्स किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब आप मेरे को ये बताओ कि इस टीचर जिसका फेस ब्लैक बोर्ड की तरफ था, इसे कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट ने डाउट पूछा, क्योंकि भाई देखो इस क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो गाइस बताओ चैट सेक्शन में कि इस टीचर को कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा। रियल टाइम एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो जिनको आंसर पता है गाइस मेरे को एक बार चैट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब इस टीचर को कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट ने डाउट पूछा। ओके, लेट मी नो गाइस इन द चैट सेक्शन कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि हाउ दिस टीचर विल बी गोइंग टू रिकॉग्नाइज व्हिच स्टूडेंट इज आस्किंग द डाउट, क्योंकि
इस क्लासरूम में मैंने अभी आपको दिखाया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं. सो या स्टूडेंट विल गोइंग टू रेज दी हैंड. ओके, या टीचर पलट के बोल सकता है कि कौन बोला. या एग्जैक्टली. ठीक है. अब गाइस ऑब्वियसली इस टीचर का ध्यान बोर्ड पे है और कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली अभी टीचर बोलेगा कि भैया आइदर यू कैन रेज योर हैंड या अपनी सीट पे खड़े हो जाओ जिसने डाउट पूछा. ठीक है. अब सपोज करो कि गाइस जो डाउट पूछने वाला था वो है ये वाला स्टूडेंट. ठीक है. अब टीचर को पता लग गया कि ओके दिस स्टूडेंट इज आस्किंग द डाउट एंड नाउ दिस टीचर कैन हैव एन इंटरेक्शन विद दिस स्टूडेंट. ये पलट के उसको जवाब दे देगा कि येस वी आर गोइंग टू कवर वेरिएबल्स एंड मेथड्स. काफ़ी कुछ हम सीखेंगे तो ये स्टूडेंट भी हैप्पी. टीचर्स को पता लग गया कि ओके दिस स्टूडेंट वाज आस्किंग द डाउट. ओके, जनरल क्लासरूम में यही सिनेरियो होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. सपोज करिए फर्स्ट क्लास है, टीचर को नहीं पता स्टूडेंट्स के नेम ना उनको उनकी आवाज़ पता. ऑब्वियसली कि जब आपकी फर्स्ट क्लास होगी आप भी यही अप्रोच फॉलो करोगे कि यार अपने हाथ खड़ा करो जिसने क्वेश्चन पूछा या अपनी सीट पे एक बार खड़े हो जाओ जिसने क्वेश्चन पूछा सो दैट आई कैन आंसर यू. ओके, सेमिनार्स में भी यही होता है, वेबिनार्स में भी आपका यही होता है. ठीक है. अब इसका सेल्फ कीवर्ड से क्या लेना देना. अब इसका सेल्फ कीवर्ड से क्या लेना देना. देखो गाइस, मैंने आपको बताया क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है ना, है. नाउ गाइस द थिंग इज अ क्लास कैन हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये देखो ये हमारी क्लास है. ओके, और इस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो. 2 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, 1000 बना लो. ओके, यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. सो गाइज अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये हटा देता हूँ टीचर. अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्लास. ठीक है. इसको चलो अब हम नाम दे देते हैं क्लास. ये हमारी क्लास है. ओके, और गाइस ये हमारे क्या है, ये है हमारे स्टूडेंट्स को हटा के अब इनको नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट्स बिकॉज अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये हमारे ऑब्जेक्ट. अब गाइस इस क्लास के पास ना बहुत सारे मेथड्स हैं. ओके, लेट अस से मेथड 1, मेथड 2, ओके एंड सो ऑन. ये क्लास है और इस क्लास के पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं. अब गाइस सपोज करो वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज करो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड दिस ऑब्जेक्ट वांट्स टू यूज, ओके दिस ऑब्जेक्ट वांट्स टू यूज दिस फंक्शन 1 एंड दिस फंक्शन 2. अब क्लास को किस तरीके से पता लगेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और किसको ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 एक्सेस करना है. क्योंकि भैया क्लास के पास तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ क्लास इज गोइंग टू आइडेंटिफाई which object wants to use this function 1 and function 2. ठीक है. So guys here comes your self into the rescue. ठीक है. अब आप अगर इस डेफिनेशन पढ़ोगे ना सेल्फ को, देखो सेल्फ क्या बताता है. सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. पता है बिहाइंड द सीन्स क्या होता है. देखो जब आप यहाँ पर एक सेल्फ कीवर्ड लिख देते हो ना, ओके हेयर यू आर राइटिंग द सेल्फ, हेयर यू आर राइटिंग द सेल्फ, लेट मी रन द सेल्फ एंड नाउ देयर विल बी नो एरर. क्योंकि जैसे हम सेल्फ लिख देंगे कोई एरर नहीं आएगा. तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, द सेल्फ रेफर्स टूवर्ड्स द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. सो मीनिंग व्हेन यू ट्राई टू कॉल द फंक्शन 1 विद द obj1, लाइन नंबर 21 में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन 1 विद द हेल्प ऑफ दिस obj1. सो बिहाइंड द सीन द सेल्फ वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय obj1. ठीक है. जैसे ही लाइन नंबर 21 में आप इस फंक्शन 1 को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट 1 की मदद से, क्लास को पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट 1 नाउ वांट्स टू यूज दिस फंक्शन 1 बिकॉज सेल्फ रिप्रेजेंट व्हाट, सेल्फ रिप्रेजेंट द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ठीक है. अब देखो जब आप लाइन नंबर 22 में ऑब्जेक्ट 2 की मदद से फंक्शन 1 को कॉल करोगे, सो लाइन नंबर 22 में क्या होगा, दिस सेल्फ वैल्यू विल बी रिप्लेस बाय obj2. अब क्लास को अच्छे से पता लग जाएगा कि ओके देखो लाइन नंबर 21 में कौन यूज कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 को ये वाला फंक्शन आपका यूज करना है. ठीक है. लाइन नंबर 22 में कौन ये फंक्शन यूज कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 मेरा फंक्शन को यूज कर रहा है बिकॉज सेल्फ वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय योर करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ठीक है. अब आप इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ोगे ना, अब आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ क्या करता है. The self parameter
is a reference to the current instance of the class and it is used to access variables that belongs to the class. ओके अब समझ में आया कि देखो सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ आपकी क्लास को मदद कर रहा है ये बताने में कि देखो लाइन नंबर 21 में ऑब्जेक्ट 1 को ये फंक्शन यूज़ करना है, लाइन नंबर 22 में ऑब्जेक्ट 2 को ये फंक्शन यूज़ करना है. सिमिलरली गाइस लाइन नंबर 24 में ये जो आपकी सेल्फ वैल्यू है विल बी रिप्लेस्ड बाय obj1. ओके एंड लाइन नंबर 25 में ये जो सेल्फ वैल्यू दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय obj2. अब क्लास को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लास को अच्छे से पता है कि ओके यहाँ पर ये obj1 मेरे फंक्शन को यूज़ कर रहा है, यहाँ पर obj2 मेरे फंक्शन को यूज़ कर रहा है. ओके बट द मोमेंट व्हेन यू रिमूव द सेल्फ, अब देखो क्लास को बिल्कुल नहीं पता लग पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे फंक्शन को यूज़ कर रहा है. ओके सो दैट इज द रीजन वी हैव दिस सेल्फ कीवर्ड विच रिप्रेजेंट द करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. बेशक ये आपकी क्लास को मदद करता है ये समझने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके फंक्शंस को यूज़ करना चाहता है. ठीक है, अब मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सेल्फ नाम दो, कुछ भी आप इसको दे सकते हो. तो गाइस दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर अपना नाम में लिख दोगे ना तो भी आपका कोड चलेगा. ठीक है, तो लेट से अगर मैं यहाँ पर इस सेल्फ को हटा के अपना नाम लिख दूँ तो भी गाइस ये प्रोग्राम आराम से चलेगा, क्योंकि ये जो पहला पैरामीटर है, ओके ये पहला पैरामीटर है, पाइथन इस पैरामीटर को ट्रीट करेगा एज अ सेल्फ. ये रूल है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, आप और मैं कोई चेंज नहीं कर सकता. जो भी आपका पहला यहाँ पर पैरामीटर आप पास करोगे ये क्या है, सेल्फ है. ठीक है, तो वही होगा लाइन नंबर 21 में. अब इस यश की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी obj1 से. लाइन नंबर 22 में इस सेल्फ की वैल्यू, इस यश की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी obj2 से. मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम चलेगा परफेक्टली फाइन. ओके बट गाइस नेमिंग कन्वेंशन के चलते हुए और जनरल रूल के चलते हुए ना हम लोग यहाँ पर सेल्फ ही लिखेंगे. ठीक है, आप लोग सेल्फ ही लिखना, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी पैरामीटर यहाँ पर दे सकते हो. बट वो रूल है कि जो भी पहला पैरामीटर आपका रहेगा वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा, मीनिंग इट विल रिप्रेजेंट द करंट इंस्टेंस ऑफ योर क्लास. ठीक है, प्लीज़ ट्राई दिस. और इसके बाद का जो है वो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर यू लीव यू प्लीज़ ट्राई दिस सेल्फ, प्लीज़ ट्राई.